Honorable members, honorable speaker. ये बैग क्या रहा है? बैग एक तो हाथ थोड़ा একটু বেরোবো। Welcome all the members to the 16th monsoon session. I hope this session will be fruitful. Newly elected members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Miss Nandini Saw, who stands elected from the Asansol constituency of West Bengal Youth Legislative Assembly, will now take the oath or affirmation, please. Miss Nandini Saw, please. Do you want to take oath or affirmation, please? Oath, please. In which language would you like to take oath? Bengali, please. मैं আমি নন্দিনী সাউ বিধানসভার নতুন সদস্য ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করছি কিংবা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করছি যে আইনের উপর স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের চির ব্যবস্থা উপর চির অনুগত থাকব আর দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করব এবং যেমন আমি গ্রহণ করেছি তার কর্তব্য নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ পালন করব। Thank you. Please have a seat. Next program, condolence. Honorable members, as we meet today, it is my bond duty to inform the House on the sober note of the sudden demise of Geeto Sri Santha Mukhopadhyay. Legendary Bengali singer Santha Mukhopadhyay passed away in Kolkata on 15th February this year. She was 90. Santha Mukhopadhyay took Bengali songs in new heights. She was trained classical singer. She was awarded with Banga Vibhushan, the highest honor in West Bengal by the state government in 2011. She also won the National Film Award for Best Female Playback Singer for her song Amane Chuti Chuti and Ore Shokal Shona Mone Khole in the film Jai Jayanti and Nishapati in the year 1970. She also won the Padma Shri in this year 2022 by the central government, although she refused. Chief Minister, please. कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं एक दरिया हूँ जो समुद्र में भी बह जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को यह बताना चाहता हूँ कि संध्या मुखोपाध्याय was an Indian playback singer and musician specializing in Bengali. संध्या मुखोपाध्याय का जन्म 4 अक्टूबर 1931 में ब्रिटिश राज्य के बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने गुलाम अली खान जी से अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत हिंदी फिल्म तराना 1950 से सुर सामग्री लता मंगेशकर के साथ की। उन्होंने अपनी जन्मभूमि कोलकाता 1952 में लौट आई। बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार को बंगाली सिंगर हेमंत मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने फेमस बनाई। महान बंगाली एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को उन्होंने अपनी आवाज दी। महान बंगाली एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को उन्होंने अपनी आवाज दी। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान जी के जेल से रिहा होने पर उन्होंने अपनी गीत रिलीज की। उनके जेल से रिहा होने पर उन्होंने अपनी गीत रिलीज की बंगो बंधु तुम्हें फिरे एसो। Opposition leader, please. पिछड़ी इस अदा से कि रुत ही बदल गई। पिछड़ी
मुखर्जी के दुखदायी निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गीता श्री संध्या मुखर्जी बंगाल फिल्म जगत के 60 से 70 में दशक में गाई जाने वाली सबसे सुंदर और मीठे सुरों की एक प्लेबैक सिंगर और म्यूजिशियन थी। संध्या मुखर्जी was the Queen of Melody in Bengal 1971 में उन्हें अपने गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर प्लेबैक सिंगर से सम्मानित किया गया। वे फेमस म्यूजिक कंपोजर एस.डी. बर्मन, मदन मोहन रोशन द्वारा डायरेक्टर में कई प्रसिद्ध गीत गाई और अभिजीत भट्टाचार्य ने उन्हें साक्षात देवी सरस्वती की प्रभुति बताई है। थैंक यू मैम। The house will stand in silence for will to a deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolence to demise family. I will convey the message of condolence to the demised family. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Chief Minister, introduce the new minister. Respected Madam, I introduce my new minister, Health Minister Sudha Chaudhary. बधाई हो। आज के सभा की शुरुआत नौ गवर्नमेंट बिजनेस से की जाती है। Now the time starts for question hour. I have received 4 questions for question hour. Question number 101. Started question. Subject स्वास्थ्य साथी. Mr. Arjit Yadav, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य साथी स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार की एक समाज कल्याण व एक महत्वपूर्ण स्कीम है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए यह एक मेडिकल सहायता है, लेकिन इस परियोजना का लाभ सभी लोग नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए जाता है तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता है कि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, लेकिन अंदर की बात तो यह है तथा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का भी कहना है कि स्वास्थ्य साथी स्कीम के अंतर्गत ट्रीटमेंट करने पर राज्य सरकार बिल का पेमेंट समय पर नहीं करती है। अतः यह सदन हारकर स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहती है कि प्रश्न संख्या क आपकी सरकार स्वास्थ्य साथी स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने रुपए अलॉट करती है। प्रश्न संख्या ख अब तक आपकी सरकार ने स्वास्थ्य साथी स्कीम के अंतर्गत कितने रुपए का बिल पेमेंट कर चुकी है। Honorable Health Minister, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सारी सदन को यह बताने जा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी स्कीम यहाँ की गरीब जनता के लिए यह मेडिकल फैसिलिटी है, जिसकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर 2016 से की है। इस स्कीम के तहत प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक की एक मेडिकल कवरेज दी जाती है। पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंतर्गत एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जो नागरिकों को पेपरलेस सुविधा प्रदान करती है। इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि यह नागरिकों के प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी प्रकल्प में कवर करता है। अब मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। उत्तर नंबर क स्वास्थ्य साथी स्कीम में सरकार प्रत्येक वर्ष औसतन 13,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। हर एक वर्ष इस रकम को बढ़ाया जाता है। इस वर्ष यह रकम बढ़कर 17,576.90 करोड़ कर दी है। उत्तर नंबर ख सरकार अब तक इस स्कीम के तहत 3,212.72 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 24.85 लाख लोग इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। 2.2 करोड़ से भी अधिक लोग इस स्कीम में अपना नाम एनरोल कर चुके हैं। धन्यवाद मैम। मिस राधा कुमारी दास को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए अनुमति दी जाती है। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें बिल का पेमेंट नहीं दिया जाता है। क्या सरकार इस योजना को समाप्त कर देना चाहती है? हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। बजट वह पकवान है जिसे सरकार रूपी बहू कितने भी मन से बना ले, लेकिन विपक्ष रूपी सास उसमें कमियां निकाल ही देती है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य साथी स्कीम 2016 से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंतर्गत अब तक 3,212.72 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के बिल का भुगतान कर चुके हैं। यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार इस स्कीम के तहत बिल का पेमेंट नहीं करती है। जो भी हॉस्पिटल अपने बिल का सटीक कागज पत्र हमें जमा करता है, उसे सही समय पर बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। जहां तक हॉस्पिटल में बेड की समस्या थी, वह अब समाप्त हो गई है। कोविड महामारी के चलते
बेड की समस्या थी, अब वह समाप्त हो गई है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो 1 अप्रैल 2020 में बेड की संख्या 3,280 थी, अब वो बढ़ाकर 32,081 हो गई है। उम्मीद करते हैं बेड की कंप्लेंट किसी भी नागरिक से नहीं आएगी। सच पूछो तो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा निकाली गई स्वास्थ्य साथी स्कीम पश्चिम बंगाल के लिए रामबाण है। No more supplementary questions, please. Question number 102. Subject बेरोजगारी. Ms. Nidhi Yadav, please. ए सियासत, तूने इस दौर में कमाल कर दिया। ए सियासत, तूने इस दौर में कमाल कर दिया। गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया, अमीरों को मालामाल कर दिया। सरकार को गरीब का ख्याल गवाता है, सरकार को गरीब का ख्याल गवाता है। जब चुनाव करीब आए तो बेरोजगारी का मुद्दा उछाला जाता है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार 2020 से कर्मसाथी प्रकल्प स्कीम चला रही है पश्चिम बंगाल के नौजवानों को नौकरी देने के लिए। सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे राज्य के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन मैंने तो कहीं देखा नहीं कि किसी बच्चे या नौजवान को नौकरी मिली है। यह सरकार क्या सिर्फ झूठी अफवाहें फैला रही है? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न नंबर क, कर्मसाथी प्रकल्प स्कीम में सरकार ने वार्षिक में कितना रुपए ऐलान किया था? प्रश्न संख्या ख, पश्चिम बंगाल के कितने युवाओं को नौकरी मिली या सिर्फ यह एक हवाई स्कीम है? थैंक यू। Finance Minister, please. Honorable Speaker मैडम, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार 2020 ईस्वी में कर्मसाथी प्रकल्प स्कीम चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12 पास युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना है। इस योजना के माध्यम से उन युवकों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिन्हें नौकरी का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए 2 लाख रुपए लोन दिया जाता है। मेरे काबिल दोस्त को इस योजना की सफलता के बारे में शायद पता नहीं है। मैं उनके एक प्रश्न का उत्तर देती हूँ। उत्तर नंबर क, पश्चिम बंगाल कर्मसाथी प्रकल्प स्कीम में सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए अपने वार्षिक बजट में घोषणा किया था, परंतु इस वर्ष उसे बढ़ाकर 7 लाख करोड़ कर दिया गया है। उत्तर नंबर ख, पश्चिम बंगाल कर्मसाथी प्रकल्प स्कीम द्वारा अब तक 4 लाख युवाओं को 8 लाख रुपए लोन दिया जा चुका है, जिसके माध्यम से वे तरह के कुटीर व लघु उद्योग का सेटअप कर दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। जब पूरे भारत में 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, ऑल टाइम हाई रेट, जब पूरे भारत में 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, ऑल टाइम हाई रेट, तब हमारे पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% कम हो गई है। अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो, तुम मुझे ये बताओ कभी सच भी बोलते हो? मिस्टर अर्जुन यादव को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए अनुमति दी जाती है। किसी के मजबूरी का मजाक मत बनाया करो, किसी के मजबूरी का मजाक मत बनाया करो। ये जनता है जनाब, कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। सरकार का वार्षिक बजट मेरे पास है, इनमें तो केवल 3 लाख करोड़ रुपए ही कर्मसाथी प्रकल्प हेतु अलॉट किए गए हैं। क्या सरकार हमें बताएगी कि सही मामला क्या है? चुनाव के समय करते हैं बड़ी बढ़ाई, चुनाव के समय करते हैं बड़ी बढ़ाई। काश ये नेता कर लेते थोड़ी और पढ़ाई, काश ये नेता कर लेते थोड़ी और पढ़ाई। फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। महोदय, विपक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने एनुअल बजट में बिल्कुल सही देखा है, परंतु बजट पास होने के बाद उसे सप्लीमेंट्री फंड द्वारा बढ़ाकर 3 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ कर दिया गया है। No more supplementary questions, please. Question number 103. Unstart question. Subject: trade industry. Ms. Sweta Kumari Das, please. Madam Speaker, West Bengal has been lagging behind in trade and industry since the age of CPI government. This government has promised to the people of West Bengal to create employment opportunity before coming in power. Your government every year announces to set up 18 or 20 new industrial parks across the state, and a handsome fund is also allowed in the annual budget every year. Madam Speaker,
Speaker, I want to know the steps taken by the government in this regard and the achievement in setting new industrial park. Thank you. ग्रामीण विकास मंत्री। Respected Madam Speaker, I rise to answer the question asked by the opposition. I give the answer in return as it is unstarred question on the table. Thank you. Question number 104, subject electrification. Opposition leader, please. Honorable Speaker Madam, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2021 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी किया था, जिसका उद्देश्य था गांव के गरीब परिवार, स्पेशली बीपीएल परिवारों को बिजली दिया जाए। और बिजली के बिना हमारा कोई काम नहीं होगा, बिजली के बिना स्टूडेंट्स पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हैज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बीन कंप्लीटेड एंड नॉट? क्वेश्चन नंबर बी, have all the rural families, especially BPL holders, got electric connection in their houses? Question number C. Please aware us on the main issue of public importance. Thank you, ma'am. ग्रामीण विकास मंत्री। लोग बिना गलती के भी ताने सुनाते हैं, समझता कोई नहीं है, पर समझाने सभी आ जाते हैं। Respected Madam Speaker, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, यहाँ तक कि इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारी सरकार 100% सफल। Members, please maintain silence. West Bengal Electricity Distribution Company Limited being the project implementing agency has been working day and night on was putting to achieve 100% electricity. Out on our 37,960 numbers of villages in the state rural department has been already electrified. All the 37,960 numbers of villages. अब हमारे राज्य में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई विलेज और ऐसा कोई एरिया भी नहीं है जहां पर बिजली न पहुंची हो। हर घर में हो उजाला, आए ना रात काली, हर घर में हो खुशियां, हर घर में हो दिवाली। थैंक यू मैम। No more supplementary questions. अब मुलतवी प्रस्ताव का समय आरंभ होता है। मुलतवी प्रस्ताव पेश करेंगे मिस्टर अर्चित यादव। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं सदन में राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के फेल हो जाने पर सदन में एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए सदन के सभी सदस्यों से समर्थन चाहता हूँ। अब प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य अर्चित यादव जी को मुलतवी प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति दी जाए या नहीं। जो लोग इसके पक्ष में हैं वे खड़े हो जाएं। इस प्रकार देखा जाता है कि मुलतवी प्रस्ताव लाने के लिए 110 सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, इसीलिए मुलतवी प्रस्ताव को बातिल किया जाता है। Now the time starts for laying report on the table. Education Minister, please. स्पीकर मैडम, सरकार ने 3 महीने पहले कोविड के दौरान शिक्षा व्यवस्था एजुकेशनल कंडीशन में क्या स्थिति बनी, इसका मूल्यांकन करने के लिए 3 महीने पहले एजुकेशन एवोल्यूशन कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। स्पीकर मैडम ने इस रिपोर्ट को पेपर में पेश कर दिया। सेक्रेटरी जनरल कॉन्वे द रिपोर्ट अमॉन्ग द मेंबर्स और इसे सरकारी गैजेट में भी प्रकाशित किया जाए। Yes, madam. I will convey the report among the members. अब दृष्टि आकर्षण प्रस्ताव का समय आरंभ होता है। मिस श्वेता कुमारी दास, प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यूथ लेजिस्लेटिव असेंबली का ध्यान चापदानी म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आने वाले उस हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ ले जाना चाहती हूँ जिसके बिल्डिंग की हालत अत्यंत जर्जर है। वह स्कूल है चापदानी आर्य विद्यापीठ, जिसकी स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुई थी। यह बिल्डिंग 65 वर्ष पुरानी है। जगह जगह पर बिल्डिंग में दरारें पड़ गई। कमरे के छत का प्लास्टर छोड़ता रहता है। कब किसके माथे पर यह प्लास्टर गिरेगा कोई नहीं जानता है। मैंने तो कई बार देखा है कि शिक्षक पढ़ा रहे कमरे में और बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान मग्न हैं और उसी वक्त प्लास्टर बेंच पर गिरता है। एक बार तो 9वीं कक्षा के एक विद्यार्थी का सिर भी फूट गया। प्लास्टर के साथ साथ
टीम का हिस्सा भी गिरता रहता है। बिल्डिंग में प्रत्येक दिन 1200 बच्चे बैठते हैं। इन सभी बच्चों का जीवन आज खतरे में है। सावधानी आर्य विद्यापीठ की तरह ही राज्य भर में अनेक ऐसे 50 साल से पुराने विद्यालय हैं जिनके बिल्डिंग का खस्ता ढल। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हुए सरकार से गुजारिश करती हूँ कि सरकार इस दिशा में अतिशीघ्र कोई ठोस कदम उठाए। 50 साल से पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ने का तुरंत आदेश जारी हो एवं इन विद्यालय के बच्चों के सिर पर मौत की लटकती तलवार को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। जनता की समस्याओं को हल कीजिए। आपको चुना नहीं है देखकर जन्म पत्र। जनता की समस्याओं को हल कीजिए। आपको चुना नहीं है देखकर जन्म पत्र। आप कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे, इस उम्मीद से बनाया है गृह मंत्री। धन्यवाद। मिस्टर अर्जुन यादव प्लीज। मिस्टर राजन शाह प्लीज। मैडम स्पीकर, मैं भी इसी समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चपदानी आर्य विद्यापीठ की सबसे पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह न्यू बिल्डिंग बनाने को लेकर सरकार की ओर से कुछ रुपए आ चुके हैं, लेकिन ये कुछ रुपए तो कुछ दिन पहले, बहुत 2 दिन पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई यूज क्यों नहीं किया गया है। स्कूल की पुरानी कमेटी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब स्कूल में न्यू कमेटी आ चुकी है। न्यू कमेटी ने पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर न्यू बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा तो है, लेकिन अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की गई है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने और न्यू बिल्डिंग बनाने को लेकर लोकेलिटी में राजनीति चरम सीमा पे है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दी जाएगी, लेकिन उसकी जगह न्यू बिल्डिंग बन पाएगी या नहीं, हमें जवाब चाहिए। अतः माननीय मैडम स्पीकर, मैं गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बारे में एक स्टेटमेंट दें। होम मिनिस्टर प्लीज। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, विपक्ष के आदरणीय सदस्य द्वारा कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो छावदानी आर्य विद्यापीठ की समस्या उठाई गई है, यह समस्या सचमुच एक गंभीर समस्या है। मैं विपक्ष के आदरणीय सदस्य को इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सारी सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि छावदानी आर्य विद्यापीठ की गंभीर समस्या को सरकार अपने कंट्रोल में लेगी और सरकारी फंड के एक रुपए का सही इस्तेमाल करेगी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि पुरानी बिल्डिंग की जगह एक ऐसी भव्य बिल्डिंग बनाई जाएगी जो वर्तमान समय के 2 बिल्डिंगों से भी अधिक कंफर्टेबल, टिकाऊ और वेल डेकोरेटेड होगी। स्कूल की नई कमेटी की देखरेख में न्यू बिल्डिंग बनेगी। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें एक बिग ऑडिटोरियम हॉल होगा जिसमें विद्यालय के सभी कल्चरल प्रोग्राम होंगे। थैंक यू मैम। Now the time starts for 0 hour. I have received 3 questions for 0 hour. Question number 103. Subject महंगाई. Opposition leader please. दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, कम पड़ जाती ईमानदारी की कमाई, कम पड़ जाती ईमानदारी की कमाई, ईमानदारी की कमाई से जान पर बनाई, ईमानदारी की कमाई से जान पर बनाई, फिर भी बेईमानी की करी, गरीब को रास ना आई। गोल गोल लाल लाल नरम नरम टमाटर, थाली से गायब होता है टमाटर। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि इनकी सरकार आने के बाद महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है? नहीं, मैं बताती हूँ। टमाटर और महंगाई इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है कि ये लोग जमाखोर लोग ये बाजार में टमाटर को आने ही नहीं देते और दिन प्रतिदिन इनको महंगा करते जाते हैं और सरकार भी इनका साथ देती है। जिंदगी की तन्हाई लिखूं, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अपनी रुसवाई लिखूं, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अपनी रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम इतना क्यों बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने के कारण सभी वस्तुओं का दाम बढ़ते जा रहा है। तेल, आटा, चावल, फल इत्यादि सब कुछ का मूल्य आसमान छू रहा है और सिलेंडर गैस का तो बोलिए ही मत। आपकी सरकार आने से पहले एक सिलेंडर गैस 400 रुपए
सभी दोस्त को यह पता नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का मूल्य केंद्र सरकार की नीति के कारण बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल का मूल्य केंद्र सरकार की नीति के कारण बढ़ रहा है। इसमें हमारे राज्य सरकार का कोई कसूर नहीं है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर 48% टैक्स बढ़ाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का मूल्य इतना बढ़ गया है। जहाँ तक बात रही साग, सब्जी, आलू, आटा, चावल, दाल, तेल की बढ़ती कीमत का प्रश्न, तो इनके दाम तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि सभी सामानों को ट्रक और रेलगाड़ी से मंगाया जाता है। ट्रक और रेल दोनों ही डीजल पर चलते हैं। जब विपक्ष में होते हो तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हो। जब विपक्ष में होते हो तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हो। जब सत्ता में आते हो तो इसका जिम्मेदार पक्ष को बताते हो। वित्त मंत्री जी, अरे आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम नहीं पेट्रोल के ऊपर आपकी सरकार 19 रुपए 70 पैसे टैक्स लेती है। 19 रुपए 70 पैसे टैक्स लेती है। महंगाई को कम कर रही है। आप सरकार अरे विपक्ष के नेताजी, आप क्या बोले जा रहे हैं? पेट्रोल और डीजल का दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। आप अपना बकवास बंद कीजिए। जसमदीप अंधा बना बहरा सुने दली। जसमदीप अंधा बना बहरा सुने दली। झूठ होता है दबदबा, सच्चे बने जली। सच्चे हुए जली। आपको जो भी बोलना है चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम के ऊपर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। इसमें हमारे सरकार का कोई हाथ नहीं है। अरे ओ महाशय, अगर आपको आंदोलन करना है तो आप दिल्ली में जाके आंदोलन करिए। शायद प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुन ले। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। वे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। सच्चे देश में मुख्यमंत्री को कोसे जा रहे। कैसा नापाक विपक्ष दिया भगवान, कैसा नापाक विपक्ष दिया भगवान, जो देश के विरुद्ध एकजुट होते जा रहे, एकजुट होते जा रहे। हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन? हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन? इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन? यहाँ निर्दोषों को सताया जाता है, यहाँ निर्दोषों को सताया जाता है, यहाँ बेकसूरों का घर जलाया जाता है, यहाँ बेकसूरों का घर जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 302, सब्जेक्ट सांप्रदायिक दंगे। मिस निधि यादव प्लीज। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये राम नहीं कहते। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। ये जो सरकार के चमचे हैं, सबके सब कन बहरे हैं, सबके सब कन बहरे हैं। इन्हें गरीबों की चीख सुनाई कब देती, इन्हें गरीबों का तो दिखाई कब देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे फसाद हो रहे हैं। बोलपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा घर में बंद करके जला दिया गया। महोदय, इन 5 लोगों को जिंदा घर में बंद करके जला दिया गया। महोदय, अब तो इंसान ही इंसान को डस रहे हैं। अब तो इंसान ही इंसान को डस रहे हैं। साफ तो महज कोने में बैठकर हंस रहे हैं। साफ तो महज कोने में बैठकर हंस रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे बने हुए हैं। 5 दिन पहले मालदा के एक विशेष अगुवाइयों के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। कोलकाता की रात में सुनसान गलियों में चोरी, मारपीट, छंतई कानून में रोज होती है। कानून व्यवस्था की हालत चरमरा गई है। पुलिस हाथ में हाथ रख के तमाशा देखती है। मतलबी दुनिया है नफरतों का शहर, मतलबी दुनिया है नफरतों का शहर। ये सरकार दिखाती शहर है पर पिलाती जहर, पर पिलाती जहर। मैं तो कहती हूँ इस सरकार को पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर फेल कर जाने से रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, रिजाइन कर देना। हाँ, रिजाइन कर देना। प्लीज सभा की गरिमा बनाए रखें। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल दोस्त से एक बात कहना चाहती हूँ कि गलत का खुलकर विरोध कीजिए,
कर दी गई है। कानून व्यवस्था को टाइट कर दिया गया है। मालदा में किसी का मजाल है, लाठी पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाए। इसके अलावा जो लोग दोषी पाए गए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। हिंसा को रोकने के लिए सरकार पार्टी स्तर पर भी काम कर रही है। बूथ लेवल पर सरकार पार्टी कार्यकर्ता को लेकर शांति सेना बनाई है, जो लोगों को समझा बुझाकर नफरत से दूर रहने का सलाह देती है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमियों। थैंक यू मैम। ये दंगे क्यों होते हैं? ये दंगे क्यों होते हैं? सवाल बड़ा अजीब है। ये दंगे क्यों होते हैं? सवाल बड़ा अजीब है। फिर याद आया चुनाव भी तो करीब है, फिर याद आया चुनाव भी तो करीब है। अरे आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अपना मुंह बंद कीजिए, नहीं तो आपका भी जेल में डलवा दूंगी। हाँ, जेल में डालेंगे। आपको जो भी बोले चेक वापस करने में बोलिए। सॉरी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि उनका ये आरोप बेबुनियाद है, बल्कि अफवाह है। क्वेश्चन नंबर 303, सब्जेक्ट शिक्षा, मिस निधि यादव। सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है। सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है। गरीब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। चुना हुआ राज्य का नेता संसद में सोता है, संसद में सोता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी एकदम नीचे गिर गई है। यहाँ तक कि महोदय, बच्चे आजकल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का और मिड डे मील खाने के लिए ज्यादा जाने लगे हैं। स्कूल के क्लासरूम में कुत्ते सोते रहते हैं। साफ सफाई और दुर्गंध का तो नाम मत लीजिए। ए राम, छी छी। अगर किसी दिन वहाँ चले गए तो अपने पाँव से वापस नहीं आ पाइएगा। और सोचिए, इसी वातावरण में हमारे मासूम बच्चे पढ़ते होंगे। सोचिए उनका क्या हाल होता है। और विद्यालय की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वही घिसी पिटी हुई सिलेबस, पुराने विधान चतुराई के जमाने की थोड़ा बहुत चेंज करके लागू कर दिया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सभी राज्यों के लिए लाई है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस नई शिक्षा नीति को हमारे राज्य में लागू करेगी? कृपया हमें उत्तर दें। एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि मेरे राज्य में शिक्षा का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। ये विपक्ष वाले बिना मतलब का व्यवस्था कर रहे हैं। शायद इसके माध्यम से इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ 96.26% above the national average of 90.04% as per the last census. West Bengal ranks 20th among the 36 states and union territories in India. विद्यालय की साफ सफाई के लिए हमने विद्यालय अभियान चलाया है। इसके बावजूद अगर विद्यालय में लगी है तो अब विद्यालय की बढ़ती जनसंख्या का दोष है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, वहाँ से 10 सदस्यों का उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। इसमें हरियाणा सरकार ने 10 सदस्यों का एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करना है, साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में इसके परिणाम पर विचार भी करना है। अब गवर्नमेंटल बिजनेस शुरू की जाती है। Now time starts for the second reading of bill titled Plastic Pollution Control Bill 2022. Honorable Health Minister, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल बिल 2022 को इस सदन में पिछले सप्ताह पेश किया गया था। इस बिल के उद्देश्य विभिन्न क्लाउड के सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया गया था। मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूँ कि आज बिल पर आज चर्चा आरंभ की जाए। धन्यवाद। मिस्टर अर्चित यादव, प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, प्लास्टिक पॉल्यूशन सचमुच मानव जाति का एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे राज्य में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बिना रोक टोक के बहुत ही तेजी से बिक रही है। विशेषकर पॉलिथीन बैग के ऊपर हमें पूर्ण रूप से बैन लगा देना चाहिए। हम सरकार के इस कदम का तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल बिल 2022 में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। मंत्री महोदय ने प्लास्टिक से बनी सभी वस्तुओं को ऊपर बैन लगा दिया है। ऐसा संभव नहीं है। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
जैसे बर्तन, ब्रश, खिलौने, यहाँ तक कि हम जिस कलम से लिखते हैं, जिस बोतल में पानी पीते हैं, वह भी प्लास्टिक की बनी होती है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अतः यह सदन भारत रत्न स्वास्थ्य मंत्री से यह कहना चाहती है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल बिल में थोड़ी सुधार करें। ग्रामीण विकास मंत्री। प्लास्टिक की समस्या एक दीमक की तरह है। प्लास्टिक की समस्या एक दीमक की तरह है जो हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे खोखला कर देती है। Honorable Madam Speaker, as of 2021, about 380 million tons of plastic is produced worldwide each year. From 1950 up to 2021, world estimated 6.3 billion tons of plastic has been reduced worldwide. On estimated 9% has been recycled and another 12% has been incinerated. This large amount of plastic waste enters in the environment, with studies suggesting that the bodies of 90% seabird contain the plastic debris. In some areas, there have been significant efforts to reduce the prominence of free-range plastic pollution. Although reducing plastic consumption, leachers, cleanup, and promoting plastic recycling, some researchers suggested that by 2050, there could be more plastic than fish in ocean by weight. Thank you. Now the time starts for voting on Plastics Pollution Control Bill 2022. जो लोग इस बिल के पक्ष में हैं वो खड़े हो जाएं। इस बिल के समर्थन में 9 मतदान और विरोध में 3 मतदान। तो इस बिल को पास किया जाता है, पास किया जाता है, पास किया जाता है। Now the bill, Pollution Control Bill 2022 को राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा जाए। Now the House is adjourned. Meet till 11 AM tomorrow.